Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15 of the course Network Security. We are in the C part where we are discussing symmetric key cryptography, and let us first have a look what we have discussed in our previous lecture. So if you precisely remember, we talked about block cipher and stream cipher. Can you recall the difference? Yes, the difference between block cipher and stream cipher is that here in block cipher, the entire data, all the elements, chunk of data or complete block of data is given as an input, and the entire input after applying the cryptography is retrieved into the form of ciphertext. So all the elements, they are converted into ciphertext. However, in stream cipher, we convert the plain text into the ciphertext bit by bit or element by element. We also discussed what symmetric key cryptography is, and we have highlighted a point that symmetric key cryptography makes use of one key, a single key, or it is also called classical encryption, or it is also called symmetric key cryptography, or it is also called symmetric key cryptography. So you can name in any way, whichever you can recall. We explored that Feastel cipher, which was proposed by the scientist or the cryptographer Horst Feastel, and this particular cipher, this particular cryptographic technique makes use of certain phases and certain operations, and then the plain text is translated or is encrypted into the ciphertext. And the actual DES, data encryption standard, was discussed in detail. It is important to have a revision on Feastel cipher, and it is important to recall what we actually performed in Feastel cipher. So if you remember, we talked that the plain text, which is of 64-bit, right? And this is block cipher because 64-bit, all the 64 bits are given to the Feastel cipher, and then the relevant encrypted text is received. So the Feastel cipher is a block cipher. So the plain text is divided into two halves. 64-bit is divided into two halves, left half and right half. So left half is of 32-bit and right half is of 32 bits. The two halves pass through n rounds of processing. There is round 1, round 2, round 3, and it can go up to maximum of 16 round. And each round produces an output which acts as an input for the next round. Each round produces an output which acts as an input for the next round, and for each round there is a key coming. There is a key or there is a sub key applied on the each round, and this sub key is derived from the main key. So the main key, a portion of the main key is taken and given to first round, another portion of the main key is given to the second round, another portion of the key is given to the third round, and keep going on. And the same processing is involved, or the same number of functions are applied over each round. There are substitution performed, there is a rounding function f performed, there is XOR or XOR is performed. So there are different types of operations that are performed on each round. We importantly discussed that there are certain constraints that we need to really think about Feastel cipher or Feastel network. That is block size. So how much of data are you giving as an input to the Feastel structure? So an appropriate size is of at least 64 bits, and since it's a
block cipher, so there should be at least 64 bits, which will then be converted into 32 bits of left half and 32 bits of right half. We also discussed that key size should be of 56 to 128 bits. The main key, which will be producing sub keys, and each sub key will be going as an input to each round, so the size should be 56 to 128 bits. Why not less than 56? Because we have discussed that less than 56 bits, it would become easy for cryptanalysis or brute force attacks. So a secure key size is of greater than 56 bits. Number of rounds, also we discussed that a single round or a couple of rounds, maybe 3-4 rounds, are not they do not provide accurate or adequate security. So it's better to have more than 10-12 rounds. At least 16 rounds should be there, and there is a typical size of 16 rounds. Can go beyond that, but a typical size is of 16 rounds. Sub-key generation algorithm, it is very important that the key which will be producing sub-keys, and each sub-key will be given to each round. So how the sub-key will be generated, so it is very important that it should be the algorithm which is going to generate the sub-key, it should be developed in the sense that it gives you strong protection, and the cryptanalysis or brute force attacks, they cannot make the cryptographic algorithm insecure. And lastly, we discussed rounding function. Again, here in the rounding function, we deliberately makes it complex, so that the cryptanalysis or brute force attack, they cannot impose any harm to the data. So ये डिज़ाइन फीचर्स थे जो कि फीचर नेटवर्क में हमने डिस्कस किए थे, और मज़ीद इसके बारे में हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने डीएस को रिप्रेजेंट करने की बहुत ही आसान सी बात ये की थी कि आप 64 बिट का डाटा दे रहे हैं, डीएस का फंक्शन अप्लाई होगा। ये जो स्क्वायर शो हो रहा है, ये पूरी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम है। इसको आप 56 बिट की की भी देते हैं, और ये आपको 64 बिट की आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो फॉर 64 बिट ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट, you are given 64 bit of cipher text. जी, क्लासिकल फीस्टल नेटवर्क की एग्जांपल की बात करें, सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव गॉट प्लेन टेक्स्ट जिसका साइज 64 बिट्स कम से कम होना चाहिए। इसको 2 हाफ्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, और आप देख सकते हैं कि K1, ठीक है, वो हर ग्रीन स्क्वायर एक राउंड के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 राउंड्स नजर आ रहे हैं, सो ये मैक्सिमम 16 राउंड्स तक जाता है, और हर राउंड में K1 आ रहा है। ये K1 या K2 या KI या KN, ये सब की से आ रहे हैं, ये सब की हैं जो कि मेन की से आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में सब की अप्लाई हो रही है, फिर राउंडिंग ऑफ का फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फिर ये इसके ऊपर जो है वो एंड और हो रहा है, और फर्स्ट राउंड जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो अगले राउंड के लिए एज एन इनपुट काम करती है, और सेम स्टेप्स अप्लाई होते हैं नेक्स्ट राउंड में, और एट द एंड आपको 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट 64 बिट साइफर टेक्स्ट हासिल होता है। ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड, ये वाला पर्टिकुलर इमेज आपके क्लासिकल फीस्टल नेटवर्क को शो कर रहा है या फीस्टल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या था कि यही फीस्टल स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज हुआ था, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन NBS ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था, और इसके बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें जब स्टैंडर्डाइज हो गई तो हमने इसको DS डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के नाम से जानना शुरू कर दिया। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही काम है, परम्यूटेशन हो रही है, इनिशियल परम्यूटेशन, और मुख्तलिफ राउंड्स हैं, उसके बाद जो है वो की अप्लाई हो रही है, फिर जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो है वो लास्ट में आपका 64 बिट साइफर टेक्स्ट के तौर पर कन्वर्ट हो रहा है। जी, आज की लेक्चर की अगर मज़ीद बात करें तो हम देखेंगे कि DS की लिमिटेशंस क्या हैं। DS एक बड़ा अच्छा
एक बड़ा फैंटास्टिक किस्म की क्रिप्टोग्राफिक स्कीम आई थी जिसने उस वक्त 1970 से लेकर लेटर ऑन ढेर सारा गवर्नमेंट का सेंसिटिव डाटा जो है वो इनक्रिप्ट करने में हेल्प आउट किया। इसके अलावा ढेर सारी कम्युनिकेशंस सिक्योरली होने लगी, बट डीएस की भी लिमिटेशंस थी। और अगर आपको पिछले लेक्चर का एक इंसिडेंट रिकॉल हो तो हमने ये बात की थी कि डीएस को भी ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरत इस चीज़ की पेश आई कि कैसे एक स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन मैकेनिज्म या डीएस से भी बेहतर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या क्रिप्टोग्राफिक स्कीम को बनाया जाए और उसको यूज़ किया जाए। हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी की एक दूसरी एग्जांपल, एक दूसरी टेक्निक जिसको AES कहते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अख्ताम पर यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है और DS में कौन से फेज थे और स्पेशली जो आपका AES है वो कैसे काम करता है, AES के फेजेस, DS की लिमिटेशन। सो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सीखेंगे। जी, ब्लॉक साइफर की बात करें सो मोस्टली ब्लॉक साइफर जो हैं वो फीसल साइफर के स्ट्रक्चर पर बेस कर रहे हैं। मोस्टली ब्लॉक साइफर्स फीसल साइफर के स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं। याद रखिए हमने ये भी बात की थी कि आपका जो DES है जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये DES भी इनफैक्ट फीसल साइफर के स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि फीसल साइफर स्ट्रक्चर जब स्टैंडर्डाइज हुआ तो इसका नाम DES बन गया, जिसमें n बिट्स प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है जो कि n बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक में तकसीम होता है। मतलब आप 64 बिट की इनपुट दे रहे हैं प्लेन टेक्स्ट में तो 64 बिट की आउटपुट ही प्रोड्यूस होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रिवर्सिबल मैपिंग होनी चाहिए। रिवर्सिबल मैपिंग का मतलब ये है कि आपने अगर प्लेन टेक्स्ट को एक एल्गोरिदम अप्लाई करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है सो वो एल्गोरिदम उसी तरीके से ऐसे काम करे कि आपका साइफर टेक्स्ट वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सके। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फंक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इनक्रिप्ट तो कर दिया है, आपने उस प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट तो बना लिया है लेकिन डिक्रिप्ट वो नहीं हो पा रहा। सो ऐसे एल्गोरिदम्स ऑब्वियसली काम नहीं करते। और अगर आपको क्रिप्टोग्राफी स्कीम के बेसिक प्रिंसिपल्स याद हों तो हमने ये बात की थी कि आप इस तरीके से एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं या आपकी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम इस तरीके से डेवलप्ड डिज़ाइन होनी चाहिए कि इनक्रिप्शन जो है वो फिर डिक्रिप्शन में भी कन्वर्ट हो सके। पर्पस इनक्रिप्ट करना नहीं है, पर्पस ये है कि आप इनक्रिप्ट करके उसको इनसिक्योर चैनल से गुजारें और एंड पर वो डिक्रिप्ट होकर वापस आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट दे। तो हम कहते हैं कि ये एक एक्यूरेट या ये एक कंप्लीट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है या फंक्शन है। ब्लॉक साइफर की बात करें तो यहाँ पे आप एक आउटपुट में देख सकते हैं, इस इमेज में, इस फिगर में ये बताया गया है कि आइडियल ब्लॉक साइफर्स क्या हैं। आइडियल ब्लॉक साइफर्स का मतलब ये है कि मतलब आप उसको कितनी इनपुट प्रोवाइड करें, उसमें कैसे डिकोडिंग हो, ठीक है, हर बिट के अगेंस्ट क्या फंक्शंस परफॉर्म हो, ठीक है, और मुख्तलिफ फंक्शंस इस तरीके से अप्लाई हों कि जो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, जो साइफर टेक्स्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर 1 वो सिक्योर हो एंड नंबर 2 अगर आप उसका वापस उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल करना चाहते हैं सो आपको वो वापस प्लेन टेक्स्ट में भी आपको वो कन्वर्ट करके दे सके। सो इसके बारे में आइडियल ब्लॉक साइफर के बारे में आप ये पॉइंट जहन में रख सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है आइडियल ब्लॉक साइफर्स का? स्मॉल ब्लॉक साइज, फॉर एग्जांपल n is equal to 4 is used which is greater than or equivalent to classical substitution cipher। अगर आप ब्लॉक साइफर का साइज जैसे कि हमने यहां पे देखा, अगर आप इसको 4 बिट रखते हैं, ठीक है, सो रिकॉल करें हमने ये बात की थी कि अगर आप इसको इनपुट स्मॉल दे रहे हैं सो इनपुट स्मॉल देना जो है वो इसको इनसिक्योर बना देता है। नंबर ऑफ बिट्स अगर आप कम दे रहे हैं तो इसको वो इनसिक्योर बना देता है। और नंबर ऑफ बिट्स अगर n is equal to 4 दे रहे हैं तो ये क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर के तौर पर ये काम करता है। दूसरा इसका ये है वल्नरेबल टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की अगर बात करें, ठीक है, आप अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करें, सो ये क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो इसमें से साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट रिवील कर सकें। उस वक्त की हम बात करें जब आपका साइज n=4 है। यहां पे हमने ये बात की है आइडियल ब्लॉक साइफर में कि बेस्ट ये है ब्लॉक साइफर कि आपका वो 4 बिट आप उसको इनपुट दें और वो रेलिवेंट 4 बिट आउटपुट प्रोड्यूस करे। लेकिन हम यही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं कि 4 बिट की इनपुट देने से ढेर सारे मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये कोई ज़्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता। वीकनेस इज नॉट इन सब्स्टिट्यूशन बट रादर इन स्मॉल ब्लॉक साइज। सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स आपने पढ़े होंगे, आपको याद हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल ब्लॉक साइज जब आप लेंगे तो वो इजीली एनालाइज हो जाएगा, क्रिप्टो एनालिस्ट उसको इजीली एनालाइज कर लेगा। सो मसला जो है वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो होती है, ठीक है, जिस तरह आप पिछली फिगर में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 डिफरेंट बिट्स हैं और वो मुख्तलिफ उसमें कन्वर्ट हो रही हैं, सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि स्मॉल साइज ब्लॉक जो है, स्मॉल ब्लॉक्स जो है वो आपका वैसे ही सिक्योरिटी को ओवरऑल वीक कर देता है। सो हम ये कहते हैं, या आइडियल ब्लॉक साइफर में आपको कोशिश ये करनी चाहिए, या आइडियली ये होना चाहिए कि n शुड बी सफिशिएंटली लार्ज एंड सब्स्टिट्यूशन इज रिवर्सिबल, then statistical characteristics of plain text are masked so that crypto analysis is infeasible। पहले 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। वल्नरेबल है, वीकनेस है, स्मॉल साइज अगर n होगा, जो कि आपके क्लासिकल साइफर के तौर पर काम करता है। हल क्या है इसका सोल्यूशन ये है कि आप इनपुट n के बजाय n4 के बजाय आप n की वैल्यू वो रखें, could be 8, could be 12, could be 16, could be 32, could be 64। n का साइज आप ऐसे रखें कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताया था। सो एक जो उसकी सब्स्टिट्यूशन रिवर्सिबल हो, ठीक है, मतलब आप प्लेन टेक्स्ट से वापस साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट हासिल करें। दूसरा, आप इस तरीके से उस पर n का साइज रखें और सब्स्टिट्यूशन आप उसको ऐसे तरीके से रखें कि स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे भी जाएं, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को अगर रिवील करने की कोशिश भी की जाए, या जो आपके पास साइफर टेक्स्ट है उसको रिवील करने की कोशिश भी की जाए, सो क्रिप्टो एनालिसिस इनफीजिबल हो, क्रिप्टो एनालिस्ट उससे कुछ अखज ना कर पाए, वो मीनिंगलेस हो, ठीक है। सो जाहिर है अगर क्रिप्टो एनालिस्ट उस पर एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, इसका मतलब यही हुआ कि क्रिप्टो एनालिस्ट हैज फेल्ड टू ब्रेक द कोड। सो अल्टीमेटली आपका जो ब्लॉक साइफर है या आपका जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक थी वो स्ट्रॉन्गर हो गई, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये हमने पहले भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे आइडियल ब्लॉक साइफर के केस में दोबारा डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि हाईलाइट किया जाए इस पॉइंट को कि आप जब बात करते हैं ब्लॉक साइफर्स की, सो आपने उसमें n का साइज, नंबर ऑफ बिट्स जो कि आप इनपुट दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आउटपुट प्रोड्यूस होगी, तो ये नंबर ऑफ बिट्स इनपुट का साइज आप इस तरीके से रखें कि ये सिक्योर इनफ हो। डिफरेंट फेजेस राउंड्स के गुजरने के बाद भी इस पे क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म ना हो सके और आपका जो साइफर टेक्स्ट है और आपकी जो पूरी टेक्निक है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, ये ओवरऑल सिक्योर रहे। की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये हम बात करते थे, इससे पहले हम बात कर रहे थे n का, इनपुट्स की नंबर ऑफ बिट्स कितनी होनी चाहिए। अब हम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप इनपुट देंगे, ठीक है, वो याद रखें डीएस की एग्जांपल जिसमें स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट दे रहे थे, यहाँ पे आप उसको की दे रहे थे और आपको आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। सो हमने n का साइज डिस्कस कर लिया, अब हम की का साइज डिस्कस करते हैं। की का साइज क्या होना चाहिए। सो मैपिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ की। एक की चाहिए होती है, ये हम पहले दिन से इस बात को देख रहे हैं कि एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एल्गोरिथम कितना स्ट्रांग है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन की साथ में जरूर अप्लाई होती है। सो की का साइज क्या होना चाहिए। सो अगर आपका नंबर ऑफ बिट्स 4 हैं, सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द की शुड बी 4 बिट्स इंटू 2 raised to power n रोज विच इज 64 बिट्स। सो आइडियली अगर आप इसको एक वेरी सिक्योर
क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक बनाना चाह रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, सो 4 के अगेंस्ट 4 बिट इनपुट के अगेंस्ट आपकी 64 बिट की सिर्फ की होनी चाहिए। 4 बिट इनपुट के अगेंस्ट आपकी 64 बिट की होनी चाहिए। अब और अगर n 64 है तो आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड की लेंथ इज 64 इंटू 2 रेज टू पावर 64 विच इज 2 रेज टू पावर 70। ठीक है, अब ये 2 रेज टू पावर 70 जो भी वैल्यू बनती है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इसमें एंट्रीज आ सकती हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा आप ये कहें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? आप 4 बिट की इनपुट के लिए आप 64 बिट की यूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 बिट की इनपुट के लिए आप 64 बिट की यूज कर रहे हैं, मतलब 16 टाइम्स लार्जर की आप यूज कर रहे हैं। तो 16 टाइम्स हर 4 बिट की के लिए 16 टाइम्स लार्जर की का इस्तेमाल करना, ढेर सारे प्रोसेसिंग ओवरहेड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एल्गोरिदम जो है वो ओवरऑल बड़ा स्लो काम करेगा और आप जो है वो प्रैक्टिकली इसको कहीं पे डिप्लॉय नहीं कर सकेंगे। सो आइडियली ब्लॉक साइफर इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ इश्यूज हैं। सो ये यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। आइए जी बात करते हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। एक जैसा हमने डीएस को पढ़ा, इसी तरह एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों हम डीएस के बाद एईएस पर आए? एक डीएस अगर अच्छा काम कर रहा था तो एईएस की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, इसको हम देखते हैं। So a new standard was needed primarily because DS has a relatively small 56-bit key which was becoming vulnerable to brute force attack. हमने ये बात की थी कि 1998 में DES को ब्रेक कर दिया गया। आपकी 56 बिट की यूज हो रही थी, 64 बिट की इनपुट थी, 56 बिट की थी, स्टिल स्ट्रॉन्गर टेक्निक थी, लेकिन 1998 में इसको ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 लाख कंप्यूटर्स यूज हुए और 5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डीएस ब्रेक हो गया। सो आप देख सकते हैं कि डीएस जो प्राइमरली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक थी, दैट वाज अल्टीमेटली ब्रोकन। अच्छा, इसके बाद डीएस के इनहैंस्ड वर्जन आए, लाइक 2DS आया, ट्रिपल डीएस आया, लेकिन इनमें और इश्यूज थे। ट्रिपल डीएस बड़ा स्लो था, इसलिए बिल्कुल हम डीएस से हटकर ज़रूरत इस चीज़ की महसूस करने लगे कि हमें कोई और एनक्रिप्शन स्कीम या कोई और हमें सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी चाहिए। इन एडिशन, द डीएस वाज डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर हार्डवेयर एंड इज रिलेटिवली स्लो व्हेन इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। जी, डीएस जब डिज़ाइन किया गया तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि हार्डवेयर पर ये एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता था, लेकिन जब इसको सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट किया गया सो ये स्लो होने लगा। हार्डवेयर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सॉफ्टवेयर पर स्लो हो गया। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल इसकी ये दूंगा। एक है आपका हार्डवेयर कैलकुलेटर, ठीक है, जो आप हाथ में पकड़ते हैं, उसके बटन्स हैं, वो कंप्लीटली पर्पस बिल्ट कैलकुलेटर है। एक है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेटर जो आपकी विंडोज में होता है। ठीक है, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें, दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपके ख्याल में ये हार्डवेयर बेस्ड कैलकुलेटर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा या विंडोज का सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेटर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा? जी, ऑब्वियसली आपका हार्डवेयर बेस्ड कैलकुलेटर ज्यादा अच्छे तरीके से काम इसलिए करेगा क्योंकि ये पर्पस बिल्ट है, ये बना ही कैलकुलेटर के मकसद के लिए है। ठीक है, इसका कोई और काम नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। ठीक है, जबकि अगर आप सॉफ्टवेयर के कैलकुलेटर की बात करें जो कि विंडोज में है, सो जहां पे विंडोज ढेर सारे और काम कर रही है, ढेर सारे और फीचर्स हैं, सो ये कैलकुलेटर होना भी उसका एक फीचर है। सो पर्पस बिल्ट डिवाइसेस ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। सो डीएस की भी हम ये बात करें कि डीएस हार्डवेयर पर बड़ा अच्छा काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसको जब सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट किया गया सो ये स्लो हो गया था। बिल्कुल इसी तरह जैसा आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर होता है, गो के एंड यूजर इन दोनों का डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि उसको हार्डली
चंद सिंपल सी मल्टीप्लिकेशंस या एडिशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप वेरी लार्ज कंप्यूटेशंस की बात करते हैं, वेरी लार्ज कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो हार्डवेयर कैलकुलेटर्स वो निस्बतन अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू दी सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर्स। हम यही बात कर रहे हैं कि डीएस हार्डवेयर पर बड़ा अच्छा काम करता था, लेकिन जब इसको सॉफ्टवेयर पर इंप्लीमेंट किया गया सो सॉफ्टवेयर पर ये स्लो था। ट्रिपल डीएस अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल की साइज। हमने शुरू में बात की कि आपका डीएस में जब जो की का साइज 56 बिट रखा तो वो क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक के लिए वल्नरेबल होने लगा, ब्रोकन हो गया। अब इस 56 बिट की के साइज की वजह से जो ब्रूट फोर्स अटैक होने लगा था उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको एड्रेस कर दिया गया ट्रिपल डीएस में, जहां पे आपने की साइज और बड़ा कर दिया। लेकिन ट्रिपल डीएस जो है वो हार्डवेयर पर भी और ज्यादा स्लो हो गया, ट्रिपल डीएस हार्डवेयर पर भी और ज्यादा स्लो हो गया। मतलब डीएस था, उसका एक प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपने एक सोल्यूशन दिया, वो सोल्यूशन जब आपने एड्रेस किया, डीएस पर अप्लाई किया, सो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। सो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आने लगे एंड इट इज अनसुटेबल फॉर लिमिटेड रिसोर्स प्लेटफॉर्म्स and may be affected by potential security issues connected with the today comparatively small block size of 64 bits। मतलब एक के बाद दूसरा मसला डीएस के साथ आना शुरू हो गया और आप एक छोटी की के मसले को हल करते थे, ठीक है, तो दूसरा मसला शुरू हो जाता था, दूसरे मसले को हल करते थे तो तीसरा मसला शुरू हो जाता था, ठीक है, हार्डवेयर के इश्यूज आ गए, कंप्यूटेशन के इश्यूज आ गए, वगैरह वगैरह। ये सारे डीएस के हम इश्यूज की बात कर रहे हैं। ये डीएस के इश्यूज इन्होंने ओरिजिनेट किया एईएस को, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को। एक ज़रूरत में महसूस की गई कि क्यों ना एक नई क्रिप्टोग्राफिक स्कीम बनाई जाए। सो अ रिप्लेसमेंट फॉर डीएस नीडेड। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का बड़ा सेंसिटिव डाटा था, जो कि गवर्नमेंट का डाटा था, बैंक्स का डाटा था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी, ये सारी की सारी डीएस से हो रही थी। अगर डीएस ब्रोकन हो गया था सो इसका मतलब ये है कि एक नई एन्क्रिप्शन स्कीम की ज़रूरत महसूस हो गई। Have theoretical attacks that can break it। डीएस पर कोई प्रैक्टिकल अटैक नहीं हुआ। प्रैक्टिकल अटैक का मतलब यह है कि किसी अटैकर ने सचमुच में कोई अटैक करके डीएस को ब्रेक करके सेंसिटिव डाटा को एक्सेस नहीं किया। लेकिन थियोरेटिकल का मतलब यह है कि जब उस पर उसको टेस्ट किया गया, जब उसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग की गई, सो डीएस जो है वो ब्रोकन हो गया। एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक्स। ठीक है, ये भी इसमें वल्नरेबिलिटी थी कि डीएस में एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक्स भी थे, मतलब आप ढेर सारी कीज की कॉम्बिनेशन ट्राई करके भी डीएस को ब्रेक कर सकते थे। ट्रिपल डीएस भी आया, उसमें भी इश्यूज थे। सो यूएस निस्ट इशू कॉल फॉर साइफर्स इन 1997। 1997 में मतलब या उन्हीं ईयर्स में 97 में या 98 में डीएस के ब्रोकन होने के बाद यूएस का ये डिपार्टमेंट है, इन्होंने साइफर्स की एक कॉल इनको कॉल की। कॉल से मुराद ये है कि इन्होंने ओपनली कहा कि भाई हमें नई क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स चाहिए। 15 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया, ढेर सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन 15 कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट हुए। ठीक है, अप्लाई सारी दुनिया से बहुत से लोगों ने किया। 15 कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट हुए, फिर उसमें भी 15 में से फर्दर फिल्टर आउट हुए और अगस्त 99 में 5 कैंडिडेट जो हैं वो उनको मजीद जो है वो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। और रेंजडाइल वॉज सेलेक्टेड एज द एईएस इन अक्टूबर 2000। रेंजडाइल क्या था? ये एक क्रिप्टोग्राफर था, इसके बारे में मजीद डिटेल भी आ रही हैं। ये एक जिसको इन 5 में से भी अक्टूबर 2000 में ये ही वॉज द फर्स्ट वन दैट वॉज सेलेक्टेड, और उसकी जो एन्क्रिप्शन स्कीम थी एईएस उसको सेलेक्ट किया गया एंड इशूड एज FIPS PUB 197 स्टैंडर्ड इन नवंबर 2001। मतलब आप देखें कि इसको 3-4 साल लगे और एट लास्ट नवंबर 2001 में एईएस एज ए स्टैंडर्ड पब्लिश कर दिया गया और इशू कर दिया गया। एईएस की रिक्वायरमेंट की बात करें सो एईएस प्राइवेट की सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। 2 बातें हैं इसमें। नंबर 1 कि ये प्राइवेट की है, प्राइवेट की कहें, सिमेट्रिक की कहें, सिंगल की कहें, ठीक है, ये एक ही बात है। दूसरा, ये ब्लॉक साइफर है, स्ट्रीम साइफर नहीं है, ब्लॉक साइफर है। मतलब आप इसको कुछ सर्टन बिट्स
एज ए इनपुट देंगे और ये सर्टेन बिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब इसको एक्चुअली 128 बिट ऑफ डाटा देते हैं। डीएस में हम इसको डीएस में हम 64 बिट इनपुट देते थे, एईएस में 128 बिट्स इनपुट दी जाती हैं और की 128 भी हो सकती है, 192 भी हो सकती है और 256 भी हो सकती है। डीएस के साथ कंपेयर करें तो 64 बिट की इनपुट थी जिसको 56 बिट की दी जाती थी। एईएस में 128 बिट की इनपुट है और आप 128 या 192 या 256 बिट की दे सकते हैं। इसको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जाहिर है डीएस, ट्रिपल डीएस, डबल डीएस इससे स्ट्रॉन्गर भी है और फास्टर भी है और एक्टिव लाइफ ऑफ 20 से 30 ईयर्स। इसका मतलब ये कि 2000 में जब ये स्टैंडर्ड बन गया है सो अगले 20-30 साल के लिए इसको सिक्योर समझा जा रहा है। मतलब इस पर इतने एग्जॉस्टिव टेस्ट किए गए हैं और इतना ये सिक्योर है कि ये कहा जा रहा है कि अगले 30 साल तक जो है उसको कोई भी कंपनीज, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, वो उसको बड़ा सिक्योरली इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्पेसिफिकेशन भी हैं, डिज़ाइन डिटेल्स भी हैं, इसकी सी में भी इम्प्लीमेंटेशन है, जावा में भी इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द हार्डवेयर, आप अगर इसको सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं सो ये सॉफ्टवेयर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी सक्सेसफुल है और ये कोई स्लो प्रोसेसिंग नहीं करता बल्कि बड़ा अच्छा ये परफॉर्म करता है। एईएस की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें, सिक्योरिटी की, एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिप्ट एनालाइज एन एल्गोरिथम, ठीक है, एंड सिंस की साइज इज 128 बिट्स सो क्रिप्ट एनालिसिस अदर देन ब्रूट फोर्स अटैक इज कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें तो ब्रूट फोर्स अटैक तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर 128 की या इसकी आप अगर बात करते हैं सो, और ये 128 मिनिमम है, 192 भी हो सकती है, 256 भी हो सकती है। तो अगर आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें सो ये तो उसके अगेंस्ट बड़ा सिक्योर है। लेकिन क्रिप्टो एनालिसिस की अगर बात करें, गैस की बात करें, थोड़ा सा एस्टिमेट करने की बात करें सो पॉसिबल है, लेकिन स्टिल एईएस बड़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन स्कीम कंसिडर की जाती है। एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न मस्ट हैव हाई कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मतलब इस एईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आपको कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी चाहिए। मतलब आप किसी पुरानी मशीन्स पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नए कंप्यूटर्स हों लेटेस्ट मॉडल्स के तो वो इसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये दोनों सुटेबल फॉर सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। डीएस का मसला ये आने लगा था कि हार्डवेयर पर वो अच्छा था, सॉफ्टवेयर पर वो बड़ा स्लो हो जाता था, लेकिन एईएस की अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर पर भी अच्छा है और हार्डवेयर पर भी अच्छा है। एंड सिक्योरिटी सिंप्लिसिटी की बात करें सो विच विल मेक एन एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप बड़े सिंपल तरीके से एक बड़ा अच्छा सिक्योर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, एईएस साइफर की बात करें सो दीज आर दी टू मैन, रेंजडाइल और डीमन, ये दो बेल्जियम के क्रिप्टोग्राफर थे और ये फाइनली जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे और एईएस की एन्क्रिप्शन स्कीम वो इनकी बनाई हुई है। और जैसा कि हमने बात की कि 128 बिट की हो सकती है, 128 बिट का डाटा है और ये इट प्रोसेसेस डाटा एज ब्लॉक ऑफ 4 कॉलम्स। वहां पे डीएस में 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता था, यहां पे ब्लॉक ऑफ 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स यहां पर आ जाते हैं। ऑपरेट्स ऑन एंटायर डाटा ब्लॉक इन एवरी राउंड, और हर राउंड में हर ब्लॉक पर हर कॉलम पर काम होता है, ठीक है। हर राउंड में हर कॉलम पर 4 कॉलम है, हर कॉलम पर काम होता है और इट इज स्पेशली डिजाइंड टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट नोन अटैक्स। जितने भी पॉसिबल अटैक्स हैं, नोन अटैक्स हैं, उसके अगेंस्ट ये सिक्योर है। इसकी स्पीड एंड कोड कंपैक्टनेस ऑन वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब आप इसको विंडोज के प्लेटफॉर्म पे करें ये इंप्लीमेंट होगा, आप इसको सोलारिस के प्लेटफॉर्म पर इंप्लीमेंट करें ये होगा, आप इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंप्लीमेंट करें ये होगा।
ठीक है, तो इसमें कंपैटिबिलिटी भी है, हर एक के साथ ये कंपैक्ट हो जाता है, स्पीडी है, हर किस्म के अटैक के अगेंस्ट रेजिलिएंट है, और इसका डिज़ाइन भी बड़ा सिंपल है और बड़ी आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो जैसा हमने बात की कि AES के लिए जो है वो कॉल आई, इसमें मुख्तलिफ लोगों ने बात की, और एक दूसरी स्टडी के मुताबिक एक स्टडी कह रही है कि 2001 में स्टैंडर्डाइज हुआ, और जबकि दूसरी स्टडी जिसमें मज़ीद डिटेल्स आई थी वो May 26, 2002 में ये स्टैंडर्डाइज हो गया था। और जो दो इसके विनर थे वो रिंजडाइल और अभी पीछे हमने नाम पढ़ा डीमन, जॉन डीमन और विंसेंट रिजमैन, ये दो इसके बेल्जियम के क्रिप्टोग्राफर्स थे जिन्होंने इसको विन किया था। 3DS का प्रॉब्लम था इनएफिशिएंसी और सिर्फ 64 बिट ब्लॉक का होना, जबकि यहाँ पर जो है वो मज़ीद DS की प्रॉब्लम ये थी कि आप 64 बिट की इनपुट के अगेंस्ट 56 बिट की देते थे और फिर मुख्तलिफ राउंड से गुजरता था, हार्डवेयर पे अच्छा था, सॉफ्टवेयर पे सक्सेसफुल नहीं था, बहुत स्लो था। ये सारे प्रॉब्लम्स AES में इम्प्रूव कर दिए गए। अच्छा जी, ये सारी बातें थी AES की एन्क्रिप्शन की। So we talked about the history of AES. Now let us talk about the stages that are involved in the AES, Advanced Encryption Standard. So there are 4 stages in Advanced Encryption Standards. There will be permutation and there will be substitution as well. So what are these 4 stages? First one is substitute byte, second one is shift rows, third one is mix columns, and fourth one is add round key. And the point here to note is that the AES is also a product cipher. Why a product cipher? Product cipher क्या था, जिसमें हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन भी होती है और ट्रांसपोजिशन भी होती है। जिस तरह DES एक प्रोडक्ट साइफर था, इस तरह AES भी प्रोडक्ट साइफर है। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी है, इसमें ट्रांसपोजिशन भी है, इसमें मिक्स कॉलम्स भी हैं, इसमें ऐड राउंड की भी है। आइए इन 4 स्टेजेस को स्लाइटली डिटेल में देखते हैं। सब्स्टिट्यूट बाइट में क्या होगा? ईच बाइट ऑफ द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सब्स्टिट्यूशन। तो 4 ब्लॉक्स हैं आपके, ठीक है, हमने बात की थी कि 4 कॉलम्स या 4 ब्लॉक्स बन जाते हैं। सो हर बाइट ऑफ ब्लॉक जो है, ब्लॉक में डिफरेंट बाइट्स होंगी, हर बाइट ऑफ ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सब्स्टिट्यूशन। हर ब्लॉक की बाइट पर सब्स्टिट्यूशन पहले अप्लाई होगी। उसके बाद शिफ्ट रोज, 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म्ड। 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट कैसे परफॉर्म होगी वो आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं। मिक्स कॉलम्स तीसरा फेज है इसमें, या तीसरा स्टेज है। इसमें क्या होगा? ईच बाइट ऑफ अ कॉलम इज मैप्ड इनटू अ न्यू वैल्यू। ठीक है, यहां पे मिक्स कॉलम में क्या हो रहा है कि हर कॉलम में हर बाइट उसको एक नई वैल्यू दी जा रही है। पहले स्टेज में उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था, तीसरे फेज में उसको एक नई वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, और चौथे फेज में ऐड राउंड की, द ब्लॉक इज एक्स और विद सब की, मतलब सब की के साथ आप इस पर एंड और का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राउंडिंग करते हैं और आप जो है ये 4 फेजेस मुकम्मल करते हैं। जी, AES की मजीद डिटेल देखते हैं। फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन द साइफर बिगिंस विद एन ऐड राउंड की स्टेज, 9 राउंड्स दैट each include 4 stages, 10th round of 3 stages excluding mixed columns, and here are the details. ठीक है, मतलब ये इसमें मजीद जो चीज़ इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताई गई है AES के बारे में वो ये है कि इसमें तकरीबन 10 राउंड्स हैं। हर राउंड में, ठीक है, वो 4 स्टेजेस जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं वो तो होंगे। 10th राउंड में जो 3rd फेज मिक्स कॉलम का था उसको छोड़ के मतलब बाकी 3 स्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे नीचे टेबल में एक कुछ वैल्यूज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल AES पैरामीटर्स की अगर बात करें, सो की साइज वर्ड्स में हो या बाइट्स में हो या बिट्स में हो, 4 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 128 भी हो सकती है। प्लेन टेक्स्ट जो है वो भी आपका 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 128 भी हो सकता है। नंबर ऑफ राउंड्स आपके 10, 12 या 14 हो सकते हैं। अभी हमने देखा ऊपर कि 10 राउंड्स एक एडुकेट
वैल्यू है, और राउंड की साइज जो है वो भी आपका 416 या 128 हो सकता है जी। सो ये AES का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, और आपने इसमें सिर्फ लेफ्ट वाले कॉलम को देखना है, क्योंकि लेफ्ट वाला कॉलम या लेफ्ट वाली जो फिगर है वो पूरे एनक्रिप्शन के प्रोसेस को बता रही है, जो राइट वाला है वो डीक्रिप्शन का है। सो डीक्रिप्शन की अभी हम बात नहीं करते, पहले हम एनक्रिप्शन की बात करते हैं। सो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पर सबसे पहले आप राउंड की परफॉर्म करते हैं और की से, ठीक है, आप देख सकते हैं कि टॉप से एक की आ रही है, वो की से राउंड की का फंक्शन परफॉर्म होता है, और उसके बाद ये अगेन जो ग्रीन स्क्वायर है ये राउंड 1 है। पहले राउंड में 4 फेजेस होंगे, 4 स्टेजेस होंगे, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, ऐड राउंड की, ठीक है। सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, ऐड राउंड की, ये एक राउंड में ये 4 स्टेजेस हैं, और हमने बात की कि ऐसे 10 राउंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 10 राउंड्स होते हैं। सो ये 10 राउंड्स जब अप्लाई होंगे, आपकी सब्स्टिट्यूट बाइट्स होंगी, फिर रो शिफ्ट होंगी, फिर मिक्स एंड कॉलम होगा, फिर ऐड राउंडिंग की होगी, ठीक है। सो ये पहला राउंड एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये आउटपुट अगले राउंड के लिए इनपुट के तौर पर काम करती है। अगले राउंड की आउटपुट इसी तरह तीसरे राउंड के लिए एज एन इनपुट काम करती है, एंड कीप गोइंग ऑन। और आप देख सकते हैं कि 10वें राउंड में 4 फेजेस अप्लाई नहीं हो रहे, 4 स्टेजेस अप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि उसमें मिक्स कॉलम का जो तीसरा स्टेज है वो स्किप कर दिया जाता है, और उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज और ऐड राउंड की कर दिया जाता है। ये 10 राउंड्स अप्लाई करने के बाद आपका प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल होता है। ये सारी AES की वर्किंग है। याद रखिए, जैसा हमने एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स की बात की थी, हमने क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स की बात की थी, हम ये कह रहे हैं कि दी एल्गोरिथम शुड बी डिजाइन्ड इन अ वे कि अगर आप इसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो ये फंक्शन रिवर्सिबल हो, एनक्रिप्ट करने के बाद ये डीक्रिप्ट भी हो सके। सो यहां पर इस दूसरे कॉलम में ये डीक्रिप्शन है, वहां से आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से इनपुट के तौर पर राउंड्स में जारी है, यहां पे साइफर टेक्स्ट इनपुट है, और आपको आखिर में प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। सो इसी तरह 10 के 10 राउंड अप्लाई होंगे, वही फंक्शंस जो कि अप्लाई हुए हैं वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, और आखिर में आपको जाके डिक्रिप्शन के फिनोमेना में साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट आपको एक प्लेन टेक्स्ट हासिल होगा। आइए जी थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं हर राउंड में सब्स्टिट्यूट बाइट की, तो सब्स्टिट्यूट बाइट से मुराद क्या है। सब्स्टिट्यूट बाइट का मतलब यह है कि AES डिफाइंस अ 16 into 16 मैट्रिक्स ऑफ बाइट वैल्यूज कॉल्ड S ब्लॉक, ठीक है। और S ब्लॉक में क्या होगा, ठीक है, जिसमें 16 by 16 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ईच इंडिविजुअल बाइट ऑफ द स्टेट इज मैप्ड इनटू अ न्यू बाइट एज फॉलो। लेफ्ट मोस्ट 4 बिट्स आर यूज्ड एज रो वैल्यू एंड राइट मोस्ट बिट्स आर यूज्ड एज कॉलम वैल्यूज। मतलब लेफ्ट की जो बिट्स हैं वो रो बन जाएंगी, और राइट की जो बिट है वो कॉलम बन जाएंगी। एंड रोज एंड कॉलम्स वैल्यूज सर्व एज इंडेक्सेस इनटू द S बॉक्स टू अ सिलेक्टेड 8 बिट वैल्यू, ठीक है। और इससे जो है वो एक 8 बिट की वैल्यू आती है। सो इसमें आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाइट कर रहे हैं। फिर आप करते हैं शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि दूसरा स्टेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये जो एक ब्लॉक आया था, ठीक है, फेज 1 के बाद, स्टेज 1 के बाद, सो इसमें अब आप इस पे शिफ्ट रोज कर रहे हैं। और शिफ्ट रोज आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं द फर्स्ट रो इन द स्टेट इज नॉट अल्टर्ड। पहली रो है, आप देख सकते हैं कि 87 F2 4D 97 ये चेंज नहीं हुई सेकंड फेज में, 87 F2 4D 97 उसी तरह है। जबकि दूसरे में क्या होता है, 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म फॉर सेकंड रो, ठीक है। सो जो सबसे पहले EC था, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और 6E उसके बाद 4C उसके बाद 90 ये पहले आ गए, मतलब 4 वैल्यूज थी, ठीक है। ये वैल्यू आपने उठा के आखिर में रख दी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू ये अपने आप को रिप्लेस कर देती हैं, इधर आ जाती हैं, और ये वाली वैल्यू आखिर में चली जाती है। सो आप देख सकते हैं इस टेबल के सेकंड रो में जो सबसे पहले EC था वो लास्ट में चला गया है, और 6E 4C 90 ने अपनी पोजीशन
शिफ्ट कर ली है। ठीक है, यहां पर भी इसको बताया गया, इसको हम कहते हैं सर्कुलर शिफ्ट। 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट जो है वो थर्ड रो में होती है। पहली रो में कोई शिफ्ट तब्दीली नहीं है, सेकंड रो में 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट है और थर्ड रो में 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट है। इसका मतलब यह है कि आपका 4A और C3 ये बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं और 4, 6 और E7 जो है वो ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज, मतलब ये 4 था, सेकंड रो में आपने इसको रिप्लेस कर दिया और ये यहां पर आ गया और इन तीनों ने अपनी पोजीशन यूं चेंज कर ली। 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट में क्या होगा कि ये दो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये दो यहां पर आ जाते हैं और ये जो रिमेनिंग है ये फिर यहां पर यूं करके आ जाता है। ठीक है, सो इसको यहां पे भी रिप्रेजेंट किया गया है। एंड 3 बाइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म्ड विद फोर्थ रो। इसी तरह 3 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होगा आपकी थर्ड रो पर। सो शिफ्ट रो ट्रांसपोजिशन जो सेकंड स्टेज है, इसमें क्या हो रहा है, पहली रो पर कोई ऑल्टरेशन नहीं है, सेकंड रो पर 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट, थर्ड रो पर 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट और फोर्थ रो पर 3 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है, जो कि यहां पे भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, एंड फॉरवर्ड शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट शिफ्ट भी हो रहा है और इनवर्स शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन राइट शिफ्ट भी हो रहा है। इस तरीके से आपको बताया गया है। तीसरा स्टेज है मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ईच बाइट न्यू इन द कॉलम इज अ फंक्शन ऑफ ऑल 4 बाइट्स in the column and each 128 bit block would be multiplied with this particular thing। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि हर बाइट इन कॉलम जो है वो बाकी 4 बाइट्स इन दैट कॉलम के लिए जो है वो एज ए फंक्शन के तौर पर काम कर रही है एंड ईच 128 बिट ब्लॉक वुड बी मल्टीप्लाई विद दिस पर्टिकुलर रो। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 1 रो एंड कॉलम ऑफ दी अदर मैट्रिक्स। मतलब आप 2 मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे और हर एलिमेंट एक प्रोडक्ट के थ्रू आपको अचीव हुआ है, सिंपली आप इसको ऐसे एज्यूम करें। एंड मल्टीप्लिकेशन विद 2 इज 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट एंड इफ, जिसका मतलब यह है कि इफ लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इज 1, अ बिट वाइज एक्स और विद दिस पर्टिकुलर विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, सो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपके ये स्टेजेस परफॉर्म हुए हैं। फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेज में आपका एड राउंड की का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड हियर यू कैन सी दैट 128 बिट्स ऑफ द ब्लॉक आर एक्स और मतलब आप एक्स और का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या जॉर्ड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं विद 128 बिट्स ऑफ राउंड की। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी दैट आपका एक ब्लॉक था, ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक था। इस 2 ब्लॉक्स पर जब आपने एंड और का फंक्शन अप्लाई किया है, सो आपको ये तीसरा एक ब्लॉक या तीसरा एक टेबल 4x4 का टेबल ये आपको हासिल हुआ है। की एक्सपेंशन एल्गोरिथम टेक्स इनपुट 4 वर्ड्स लाइक 16 बाइट एंड प्रोड्यूस 44 वर्ड्स 156 बाइट एंड 4 वर्ड्स राउंड की इज यूज्ड फॉर ईच राउंड। ये मजीद हमने एड राउंड की हमने बात की थी जो कि AES में परफॉर्म की जाती है। अच्छा जी, AES के प्रोसेस को अगर देखें अगेन, तो आपका प्लेन टेक्स्ट था, सबसे पहले आपने उस पर एड राउंड की अप्लाई की। ठीक है, ये जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रही है ये की है। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने इनिशियल राउंड में साइफर की के साथ इस पर एंड और परफॉर्म किया, फिर वही 4 स्टेजेस थे, सब्स्टिट्यूट की, शिफ्ट रोज कीज, मिक्स कॉलम, एड राउंड की। ये 4 स्टेजेस 9 राउंड तक अप्लाई होते हैं। 10th राउंड जो फाइनल राउंड होता है उसमें आप मिक्स कॉलम वाला अप्लाई नहीं करते, सिर्फ सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट रोज और एड राउंड की का फंक्शन अप्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट आपको साइफर टेक्स्ट हासिल हो गया है। सो कहने का मतलब यह है कि AES में अगेन डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और इसकी ब्यूटी यह है कि ये सॉफ्टवेयर पर भी बड़ा एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड है और बड़ा फास्ट प्रोसेसिंग करके आपको ये आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। अच्छा जी, की एक्सपेंशन की अगर बात करें, यहाँ पे हमने की साइज की बात कर रहे थे और हमने DES में भी देखा कि कीज के इशू थे। 56 बिट की
वो ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट भी रेजिलिएंट नहीं थी और बड़ा इजीली उस पर क्रिप्टो एनालिसिस भी परफॉर्म किया जाता था। सो अगर इनपुट साइफर की 128 बिट्स की है, 128 बिट्स मीन 16 बाइट्स या 4 वर्ड्स आपके बनते हैं। सो अगर की साइज आपका 128 बिट है तो उसके अगेंस्ट जो आपकी बिट्स बनेंगी वो 1248 बिट्स बनेंगी, या जो है वो उसको आप 156 बाइट्स कहें, या हर 4 वर्ड की के अगेंस्ट 44 वर्ड्स आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एंड द की एक्सपेंशन एल्गोरिथम रिड्यूस क्रिप्टो एनालिसिस अटैक, इट एलिमिनेट्स द सिमेट्री। ये इसकी ब्यूटी ये है, ये अप्लाई इसलिए किया जा रहा है कि हर 4 वर्ड्स के अगेंस्ट आपके 44 वर्ड्स की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सो ये आपके एईएस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती है और आपके जो क्रिप्टो एनालिसिस अटैक्स हैं वो इस पर बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपकी स्कीम ओवरऑल बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। एंड साइफर की इज यूज्ड इन इनिशियल राउंड। ये जो हम बात कर रहे हैं साइफर की का, चाहे वो 120, ये सिर्फ इनिशियल राउंड में यूज होती है। यहां पे जिस तरह हमने देखा है ये साइफर की दैट इज ओनली यूज्ड इन द इनिशियल राउंड। अच्छा, मजीद अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो इनपुट आपकी है, लेट्स से हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है 32, 43, F6, A8 वगैरह वगैरह। ठीक है, साइफर की हमारे पास इस साइज की थी। सो सबसे पहले राउंड नंबर का फंक्शन है, स्टार्ट ऑफ राउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सब बाइट्स हैं, तीसरा स्टेज शिफ्ट रोज का है, चौथा स्टेज जो है वो मिक्स कॉलम का है और उस पर राउंड की के साथ एंड और का फंक्शन अप्लाई हो रहा है। फिर फर्स्ट राउंड अप्लाई हुआ, इसी तरह यू कीप गोइंग ऑन, यू अप्लाई ऑल दी 10 stages, and after all these 10 rounds you are left or you are given the cipher text. ठीक है, सो 32 बिट यहां पे आ गया, 43 यहां पर आ गया, यू कीप गोइंग ऑन, F6 आ गया। ठीक है, सो पहले राउंड में इस तरीके से आ गया। देन फर्स्ट राउंड में आप देखें, सो ये मजीद वैल्यूज जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड पर जो है वो शिफ्ट 1 सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है, सेकंड रो पर 2 सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और फर्स्ट रो जो है वो आपकी अनअल्टर्ड है, सेकंड रो आपकी 1 शिफ्ट सर्कुलर है, थर्ड रो आपकी 2 सर्कुलर शिफ्ट है और फोर्थ रो आपकी 3 सर्कुलर शिफ्ट है। ठीक है, उसके बाद इस पर जो है वो एंड और का फंक्शन अप्लाई हो रहा है और आपको एक रेलेवेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड राउंड चलेगा, यू कीप गोइंग ऑन, यू कीप चेंजिंग द वैल्यूज। सो ये सारी चीजें होने के बाद आपको मतलब आप देख सकते हैं कि हर राउंड के अगेंस्ट आपको सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है जो कि अगले राउंड के लिए एज एन इनपुट काम करती है। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स की अगर बात करें एईएस की, सो कैन एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ऑन 8 बिट सीपीयू। मतलब आपके 8 बिट जो कंप्यूटर्स हैं उस पर भी ये बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो तो 64 बिट्स और इससे ज्यादा के भी आए हुए हैं। बाइट सब्स्टिट्यूशन वर्क्स ऑन बाइट्स यूजिंग अ टेबल ऑफ 256 एंट्रीज। जो फर्स्ट स्टेज था बाइट सब्स्टिट्यूशन, उसको एक 256 एंट्रीज का टेबल चाहिए होता है। शिफ्ट रोज इज सिंपल बाइट शिफ्ट जैसा हमने देखा, एंड एड राउंड कीड वर्क्स ऑन बाइट विद एक्सऑर ऑपरेशन, एंड मिक्स कॉलम रिक्वायर्स मैट्रिक्स multiply in GF28 which works on byte values, can be simplified to use table lookups and byte XORs. ठीक है, सो ये इसके implementation aspects हैं। मजीद देखें 32 बिट CPU पर भी easily implement हो सकता है redefined steps to use 32 bit words। ठीक है, और इसके अलावा can pre-compute 4 tables of 256 words, and designers believe this very efficient implementation was a key factor in its selection as the AES cipher। ठीक है, मतलब इसके ढेर सारे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से AES को इसलिए
कंसिडर किया गया और AES को इसलिए जो है वो स्टैंडर्डाइज किया गया क्योंकि ये हर किस्म के अटैक के अगेंस्ट सिक्योर है, इसकी प्रोसेसिंग इजी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान है और आपकी जो भी आप इसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो सिक्योरली जाता है। और एक और पॉइंट जिसकी हमने बात की थी वो ये था कि इसकी लाइफ जो है वो 20 से 30 ईयर्स है। मतलब अगर 2002 में ये स्टैंडर्डाइज हुआ है तो 2032 तक तो हम इसको बड़ा इजीली यूज कर सकते हैं। एंड दी क्रिप्टोग्राफर्स दे सी AES एज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक स्कीम जिस पर टाइम बीइंग कोई भी अटैक अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। जी, आज के लेक्चर की समरी की तरफ चलते हैं। आज हमने बात की कि ब्लॉक साइफर्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं और हमने साइज की नेगोशिएशन की बात की। हमने ये भी देखा कि आइडियल ब्लॉक साइफर में अगर n आप 4 बिट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी और की साइज फिर कितना स्ट्रांग होगा और वो कितना प्रैक्टिकल रहता है या प्रैक्टिकल वो नहीं रहता। हमने DES की लिमिटेशंस देखी। DES की लिमिटेशंस यही थी कि 1997-98 में DES थ्योरेटिकली ब्रोक डाउन कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद डबल DES और ट्रिपल DES तो आए, ठीक है, जिसमें 56 बिट की के बजाय स्ट्रॉन्गर कीज और लॉन्गर कीज यूज की गई, लेकिन स्टिल हार्डवेयर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक थी, सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करने से वो बहुत स्लो हो जाता था। सो एक और क्रिप्टोग्राफिक स्कीम की ज़रूरत महसूस की गई और हमारे पास एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड ये हमारे पास सामने हुआ। इसमें जो है वो हमने डिटेल से देखा। इसमें हमने देखा कि इसमें 4 स्टेजेस हैं। ये 4 स्टेजेस पहले 9 राउंड्स में होते हैं और 10th राउंड में सिर्फ एक स्टेज जो है वो 3rd मिक्स कॉलम का स्किप कर दिया जाता है और आपका प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट आपको साइफर टेक्स्ट हासिल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी पर अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे और हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे और ब्लॉक साइफर के बजाय अब हम स्ट्रीम साइफर की तरफ आएंगे और स्ट्रीम साइफर जैसे कि RC4 है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो आई होप कि अब तक आपने जो है वो सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी और DES किस तरीके से काम करता है और AES किस तरीके से काम करता है ये दोनों आपने समझ लिए होंगे। इंशाल्लाह हमारी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स पर मज़ीद डिस्कशन जारी रहेगी। आई विल सी यू विद मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ एंड अल्लाह हाफिज़।